when we came up with the first edition of Trolley Times and the kind of response we received, both from the protesters and uh, people who were sitting outside the protest sites but were following the uh, protest very closely. We received a really good response from them and also from a few media handles. And that was the time when we realized that we have to expand it. And that was the time we started looking outwards. And I guess the another reason was the way national media, the uh, we call it Gudi media or the corporate media, the way those media channels were portraying the whole movement was also problematic. And we thought we can condemn those fake narratives of the Godi media with the help of our own newsletter. How did Trolley Times travel from one place to other? Because it wasn't just one place. There were different protests going on in different places. So there were people who were constantly moving between the different borders or the protest sites, and in a way they helped us in transporting the Trolley Times. And I mean, like nothing was pre-planned because this movement was really very new for everyone, and uh, we were living by day, and we were like each day we were experiencing new issues, we were facing new challenges, and accordingly we were trying to adjust ourselves, trying to uh, evolve new ways of Yeah. doing different things. So I guess during the course we discovered how some people are visiting the different protest sites, or the protest sites which were like really far away from the Tikri border. So people were going there to for different reasons. So we started taking help from them to transport the trolley times. And I guess it was totally a collective effort in writing, distribution, printing, publishing, everything. you know uh, Many lost their lives while in the protest. It is very difficult for someone being in the protest and know that a friend that is with you has died because they were in the protest. So how did you manage to still continue what you were doing there, and your protest? How did you continue your protest there? I guess, yeah, it was difficult because every day we were losing uh, someone, or the like somebody was dying on one border or the other each day. And it was difficult hearing those news sitting on the protest sites. But on the other hand, we were also aware of the main motive of the protest, and we were aware that all the people who are like giving their lives, they are giving them for a purpose, and the purpose was repealing of these three laws. So I guess that was the only motivation for us, even if like अगर हमें उनको कोई सच्ची श्रद्धांजलि भी देनी थी जिन लोगों को हम हर दिन खो रहे थे, उसके लिए भी हमारे पास एक ही तरीका था कि हम जज्बे के साथ उस लड़ाई को लड़ते रहे और उसको जीते। एंड आई गेस अभी जब मोर्चा खत्म होने तक हमने ऑलमोस्ट 750 लोगों को खो दिया, 750 लोग इस आंदोलन के दौरान शहीद हुए हैं। उनके लिए हमारी श्रद्धांजलि यही है कि हम बीच में छोड़ के इस आंदोलन को नहीं गए, हम एकदम इसको अंत तक लड़े हैं और जीत के ही वापस गए हैं। How will you describe the involvement of women in the protest? Because initially the whole narrative of women participation was that women are making rotis on the protest site, जिसको लोगों ने खुद ही बाद में करेक्ट भी किया।
बिकॉज़ इट वाज़ रियली प्रॉब्लमैटिक। वो तो खाना तो महिलाएँ घर पे भी बनाती थी, वहाँ पे वो सिर्फ़ खाना नहीं बना रही थी बल्कि उसके अलावा जो भी कोई काम एक आंदोलन पे हो सकता है, वो सब भी वो कर रही थी। बट अगेन उसमें भी ये है कि जो महिलाएँ पार्टिसिपेट की, उनमें भी आगे क्लासिफ़िकेशंस थी डिफरेंट डिफरेंट। उसमें एकदम रूरल महिलाएँ जो शायद घर से, गाँव से पहली बार निकली थी, वो भी उसका एक बड़ा हिस्सा थी मूवमेंट का। उसके अलावा एक हिस्सा यंग वोकल महिलाओं का भी था, जो जिनको शायद स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ का हम्म। एक्सेस है। तो उनका फाइट विद इन मूवमेंट थोड़ा अलग था, मतलब जेंडर को लेके। और जो महिलाएँ शायद पहली बार गाँव से निकली थी, उनका पूरा स्ट्रगल अलग था। तो इस तरीके से जो हम कह सकते हैं कि विद इन मूवमेंट जो जेंडर की एक स्ट्रगल चल रही थी, उसकी भी आगे कई लेयर्स थी। एंड आई गेस उसपे एक लंबा-चौड़ा अलग से डिस्कशन हो सकता है कि किस किस्म से महिलाओं ने हर अ अ, हर तरीके से इस मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग किया, ना सिर्फ मोर्चे के ऊपर रह के बल्कि पीछे से भी बैक एंड सपोर्ट के रूप में भी। Do you think your fight is over now that farm laws are repealed? I don't think so. I guess it's just the starting because agrarian crisis ना तो 3 किसानी कानून आने के साथ शुरू हुआ था और ना ही तीनों रिपील होने के साथ खत्म होगा। ये क्राइसिस में सिर्फ एक कदम था, नया कदम जो जुड़ने वाला था जिसको किसानों ने वापस करवाया अपने संघर्ष के साथ। उसके अलावा अगर सच में हमें एग्रीगेट क्राइसिस को एड्रेस करना है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश में लगभग 50% जो लोग हैं वो अभी भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। तो एग्रीगेट क्राइसिस को हल करना हमारे देश के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़रूरी है और अगर हमें वो करना है तो हमारे लिए लड़ाई अभी बहुत लंबी है। किस तरीके से एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाने चाहिए, उस पे बात होना। ऑलरेडी जिन स्टेट्स में सिमिलर पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, लाइक बिहार में सिमिलर लॉज़ 2006 में पास हो गए थे एंड वी नो बिहार का एग्रेरियन क्राइसिस कितना सीवियर है इस टाइम पे। तो उन सारी स्टेट्स में फिर से खेती की स्थिति को ठीक करने के लिए हमें बहुत लंबे संघर्ष अभी लड़ने पड़ेंगे। मोरओवर जो स्टेट्स इस आंदोलन में ज़्यादा सक्रिय थी लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, उत्तराखंड, इट्स आल्सो द ग्रीन बेल्ट, जहाँ पे सॉरी, हब ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, सेंटर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो उस ग्रीन रेवोल्यूशन को हमने एक दौर में इम्प्लीमेंट तो कर दिया, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस के चलते जो अभी एनवायरमेंटल इश्यूज हमें इन एरियाज में सामने आ रहे हैं या हेल्थ क्राइसिस जिस कदर हमारे सामने है इस सारे रीजन में, उसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मॉडल तलाशना होगा, उसकी तरफ काम करना होगा। पॉलिसी लेवल पे इस तरीके की पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जो फार्मर फ्रेंडली हों। तो अगर ये सारे मुद्दे देखें तो इट्स जस्ट द बिगिनिंग। Do you think government did this because they thought it was good for farmers, or they repealed the laws because they were scared of their electoral laws? Definitely, the only thing BJP is concerned about is electoral loss and yes, definitely like किसानों ने लंबे मूवमेंट के साथ जबरदस्त प्रेशर बना के रखा सरकार के ऊपर। सरकार को पहली बार इस कदर इतने बड़े लेवल पे रेजिस्टेंस का, वो भी लोगों की रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट हमेशा से दबाने में सफल रही है। अगर हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस देखें, ये ऐसा मूवमेंट है जिसको वो चाह के भी दबा नहीं पाई। बट डेफिनेटली इसमें भी जो एक टर्निंग पॉइंट आया वो है आने वाले दिनों में जो यूपी चुनाव है। बहुत सारे लोग इस सवाल पे मेरे से डिफर कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली मानती हूँ कि इस सारे आंदोलन के चलते वेस्टर्न यूपी में बीजेपी को जो इलेक्टोरल लॉस होने वाला
था, है, मतलब उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। उसके दौरान लखीमपुर खेड़ी का जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, हम्म। उससे जो माहौल बना है, तो उससे सचमुच बीजेपी के अंदर एक डर पैदा हुआ है यूपी इलेक्शंस को लेके। और मुझे लगता है कि ये तीनों कानून वापस लेने में आने वाले दिनों के यूपी इलेक्शन का बड़ा रोल है। What do you think will be the future of trolley times now? Now that laws are repealed and protest is over. सो लाइक वी आर स्टिल इन प्रोसेस। हम सोच रहे हैं कि उसको किस कदर आगे बढ़ाया जाए, बट एक चीज़ तो तय है कि यस, उसको कंटिन्यू किया जाएगा। और दूसरा ये भी है कि जिस तरीके से हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूशन ईज़ी थी प्रोटेस्ट साइट्स के ऊपर, वो अभी नहीं रहेगी। इसलिए उसको फिज़िकल रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में हम आगे कंटिन्यू कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, उस पे अभी भी सवालिया निशान है। बट वी आर थिंकिंग कि एक मल्टीमीडिया मॉडल के तौर पे हम उसको डेवलप कर सकते हैं। इस पे वी आर स्टिल लाइक थिंकिंग, तो होपफुली बाय एंड ऑफ दिस मंथ हम कुछ उस पे कंक्रीट कर पाए। I'll ask you the last question. How will you remember this movement? बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से मैं इस आंदोलन को हमेशा याद रखूँगी, क्योंकि एक बात तो तय है कि अ, अभी तक के मेरे लगभग 15 साल के एक्टिविज़्म के करियर में ये अपनी किस्म का पहला आंदोलन था। इतना बड़ा, अ, क्वांटिटी वाइज़ भी, इतना लंबा चलने वाला, बहुत सारे मायनों में, और जिस किस्म का एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस इस आंदोलन ने दिया है, जिस किस्म का एक कलेक्टिव मूवमेंट का एक्सपीरियंस इस आंदोलन ने दिया है, मेरा ख़्याल वो हमेशा आगे वाले दिनों में मदद करेगा। और कह लो कलेक्टिव फाइट्स को ऑर्गेनाइज़ करने में। एंड डेफ़िनेटली जितने साथियों को हमने खोया इस दौरान, उसको उनको तो नहीं हम भूल पाएँगे। तो वो तो एक ऐसा लॉस है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। बट डेफ़िनेटली इसने फिर से एक उम्मीद जगाई है। मेरा ख़्याल सिर्फ़ मेरे अंदर ही नहीं, बल्कि बहुत सारे प्रोग्रेसिव लोगों के अंदर, जो पिछले कुछ समय में शायद हताश होते जा रहे थे कि बीजेपी सरकार अपनी मनाही करती जा रही है और उसको कोई भी चीज़ रेज़िस्ट नहीं कर पा रही। लोग कोशिश करते हैं लेकिन फ़ेल हो जाते हैं। तो आई गेस इस पर्टिकुलर आंदोलन ने फिर से वो उम्मीद जगाई है कि नहीं, आम जनता भी, देश के लोग भी इस सरकार को रोक सकते हैं। और मेरा ख़्याल यही उम्मीद है जो आने वाले दिनों में हमें इस फ़ासिस्ट गवर्नमेंट से Yeah. बचाएगी।